Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay. So guys, now here I am again with a video that is in continuation with the series of films PYQs solving. Okay, so I have already made it for 24, 23, 22 and now it is term for discussing 2021 video. ओके सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन एज यूजुअल इट्स नो कि हम ट्राई करेंगे कि कैसे ये जो फिल्म्स के ज्योग्राफी वाले सेक्शन है पर्टिकुलरली इनको अटेम्प्ट करना है, किस वे से लॉजिक अप्लाई करना है एंड व्हाट कुड बी लाइक इन्फरेंस फर्दर, किस एरिया से क्वेश्चन आया है, किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया है, लॉजिक कैसे अप्लाई होगा एंड एवरीथिंग एज इन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इन दिस केस. आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दी अर्लियर वीडियोज एज वेल, तो जिससे ना आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस वे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो starting with the first question itself. The vegetation of savanna grassland, savanna climate. See, this question is basically on the world geography climatology. ठीक है, basics of climate and usually in the class I suggest के types of climate पे 100% question होगा. ठीक है, तो types of climate ये related question and you will find some clues have been given. You have to identify the best one. Now, consists of grassland with scattered and small trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more combination of some conditions. See, generally the savanna is a grassland region. Okay, you must be aware about. So grassland region है. So why doesn't it has a development of forested region or a well-grown trees as in? तो ये question है. अब देखो again do while solving prelims examination to remember one thing that while solving papers or question we need to remember we are not supposed to attempt correct option, right? Correct option, but हमें attempt करना है most correct option. ठीक है, अब ये what does that mean by most correct option? Most correct option it simply implies कि see it may be a possibility कि given answer में या given options में सारे correct हो सकते हैं या सारे incorrect भी हो सकते हैं. Now the thing is what we have to focus on, we have to focus on that aspect कि इसमें से among this given option कौन सा ज्यादा most suitable है and that is given in the further options. तो ये हमारे लिए strategy होगी for the case of prelims. Okay, I hope you guys are getting the same. Now देखो, the burrowing of animals and termites it could be a possibility because जिससे क्या होगा soil infertility या fertility बढ़ भी सकती, कम होगी and maybe transformation नहीं होगा. फायर, या दैट इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी बिकॉज फॉरेस्ट फायर एलए की जो फॉरेस्ट फायर है वो भी कनेक्ट हो सकती है. ग्रेजिंग हार्बीवोर्स या ग्रेजिंग, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ग्रेजिंग से क्या होगा, ग्रासलैंड्स ग्रास में ही कन्वर्ट होगी और ट्रीज में या रूट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे एंड दैट इज व्हाट लीडिंग टू सीजनल रेनफॉल देयर, या सीजनल रेनफॉल इज इक्वली अ कंडीशन. And soil properties are not that enough fertile that it just could lead to this condition. ठीक है, so now here what we have to focus on, see all of the above, ये तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास. ठीक है, all of the above. Now in such a case we have to find among this 5 given the best one. ठीक है, जो सूट कर रहा है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को. ठीक है, तो ओवर हियर 1 2 4 5 आई वुड फाइंड के 5 अगर करेक्ट है तो उसमें से 2 से ज्यादा मैं 3 या 4 के साथ जाऊंगा. ठीक है, तो 2 वाला तो आई वुड रादर नॉट कंसिडर. 2 3 4 एंड 1 3 5. नाउ अमॉन्ग सॉरी बिटवीन दिस टू अब हमें देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा ज्यादा सुटेबल है. एंड फायर, ग्रेजिंग एंड सीजनल रेनफॉल रादर सूट्स द बेस्ट वन. देखो बर्रोविंग एनिमल्स समहाउ आर रिस्पॉन्सिबल बट कुछ हद तक ये फैसिलिटेट भी करेंगे समटाइम्स एंड सॉइल प्रॉपर्टीज इक्वली. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन रादर दैट सूट्स है ना इज रादर सी 2 3 एंड 4. आई होप गाइज यू आर गेटिंग दिस थिंग हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है दैट डील्स विद द ओशनोग्राफी हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, यूजुअली इन द क्लास आई रिकमेंड कि ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन के अर्थ सरफेस पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है that you will find twice or thrice question has already been asked in the examination. सिंपल सा एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन बेसिस पे ये क्वेश्चन है और अगर ये हमारा इक्वेशन याद होगा तो you can absolutely attempt this question. Now see, the amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. अब यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे वाटर का proportion है. सबसे ज्यादा as you must be aware about ocean, then you must be aware about ice caps and glaciers. ठीक है, then it is in the groundwater and then surface water it is. ठीक है, so absolutely you will find river और lakes में ground water से ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि सरफेस वाटर में रिवर लेक्स आएंगे, स्वैम्स आएंगे, एटमॉस्फेयर आएगा. यू विल फाइंड फर्दर डिविजन्स आर एज वेल देयर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टैंड इनकरेक्ट.
द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप, ठीक है, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ओवर दिस इक्वेशन, कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, देखो आइस कैप्स में वाटर अमाउंट ज्यादा है देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर, सिंपल सा इक्वेशन है. Second is correct. Answer is 2 only. Now you can do, you can remember this proportion or you can have equation in connection to this. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसका इक्वेशन बना लो, उसको याद रख लो एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो इजीली. ठीक है, तो इसका आंसर है बी ओनली. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये जो क्वेश्चन है इट एक्चुअली वेजिटेशन से डील कर रहा है. Every year you will find vegetation से one or the other question होता है, which of the following is deciduous tree, which of the following is not evergreen tree and that kind of question. ठीक है, so vegetation से क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से कनेक्ट करेगा. मोरिंगा और ड्रमस्टिक, राइट, ड्रमस्टिक इज ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री. ठीक है, it is actually semi evergreen rather than evergreen and leguminous tree, it is not a leguminous. ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट. टैमेरिंड इज एंडेमिक टू साउथ एशिया. ठीक है, टैमेरिंड इज एंडेमिक टू वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, अब ये थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पे, बट यस एब्सोल्युटली अगर कुछ चीजें आइडिया होगी क्लियर तो यू विल फाइंड कि ये होगा. ठीक है, टैमेरिंड यू मस्ट हैव सीन इन योर सराउंडिंग. ठीक है, तो टैमेरिंड इन इंडिया द मोस्ट ऑफ टैमेरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. हाँ यस, सी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, मेजर और माइनस. मेजर इट मीन सिंपली टिम्बर, except all, right, the timber you will find that is a minor forest produce. So answer तो yes here है. Then India export tamarind seeds of moringa. बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, seeds तो हम export कर सकते हैं. तो yes we are doing, and seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuel, and you must be a biofuel, right? Bio it means simply life, so any fuel that can be produced by means of fermentation, by means of processing, and that is leading to by means of life, right? तो ये होगा. लॉजिकल है. पहले 1 2 3 आई वुड रादर फाइंड मच मोर इजी टू. ठीक है, कि एक्सपोर्ट भी होगा, बायोफ्यूल भी बनेगा और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी होगा. अब नाउ देयर रिमेन्स अ डाउट ओवर ऑन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, सो अब यहाँ पे हल्का सा मतलब यहाँ पे ना लॉजिक मान लो या थोड़ा सा गेस वर्क भी करना पड़ेगा. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 2 एंड 5. आंसर इज, ठीक है, somehow that way. Then the most easy question I would say that is on the soil, इंडियन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन. ठीक है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ विच ऑफ द रॉक. ठीक है, यू मस्ट बी फाइंड दिस ब्लैक सॉइल ओवर इन द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एज वेल. ठीक है, सो यू विल फाइंड देयर कर्नाटका एज वेल. सो ये बना है बेसाल्ट रॉक से. बेसाल्ट रॉक इज रादर वोल्केनिक रॉक. ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ ए फीजर वोल्केनिक रॉक. ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन. आंसर इज B to this question. I am not going to explain it further about this. ठीक है, easy question. How is permaculture farming different from the conventional chemical farming? ठीक है, permaculture farming and conventional. जी देखो यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा पता ना भी हो ना तब भी आप लॉजिक लगा सकते हो. केमिकल फार्मिंग दिया है मतलब ये केमिकल का यूटिलाइजेशन है, फर्टिलाइजर एंड, और यहाँ पर है परमाकल्चर मतलब कुछ इससे बेटर ही फार्मिंग होगी. दैट इज व्हाट दिस केस. ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली भी हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट इज सिंपली यू कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट. नाउ permaculture farming discourages monoculture practice. Monoculture practice मतलब using or cultivation of single crop as in wheat, rice, sugarcane. But in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. That is what we have seen, right? पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है? That is what the case. तो पहला स्टेटमेंट तो logically correct होता है. Conventional farming can be used cause increase in soil salinity. हाँ, क्योंकि soil salinity increase हो भी रही है क्योंकि हम excessive pesticide, excessive fertilizer use कर रहे हैं. But occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. तो क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं कि chemical farming is somehow opposite to permaculture farming, you can see connect with this. Still we can hold this statement because we are not much aware about this. Conventional chemical farming is easily possible in such region. ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक्सट्रीम वर्ड है, easily possible. ठीक है, now we have to look for whether it is possible to transform chemical type of farming or irrigated area टू ए पर्माकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, सो अब यहाँ पे हल्का सा इजीली वाला वर्ड इज रादर ए की वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड आई बिलीव, राइट, दिस वन. एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग, जो वैदिक फार्मिंग में भी होता है या अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आपने देखा है वहां पर भी होता है, बट नॉट नेसेसरी इन कन्वेंशनल फार्मिंग. ठीक है, मल्चिंग कोई एज सच नेसेसरी नहीं है. तो फोर्थ सिम्स लॉजिकली करेक्ट. ठीक है, अब अगर इवन आफ्टर वी गो थ्रू द ऑप्शंस यू विल फाइंड 1 and 4 rather lies only in B. ठीक है,
तो इवन देन यू विल फाइंड कि 3 इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम है, इजीली इट नीड सम मॉडिफिकेशन, ओके, मे बी सॉइल टर्मिनेशन हो सकता है, सॉइल रिक्लेमेशन हो सकता है, ओवरऑल एडेप्टेशन भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई आंसर टू दिस इज बी, ठीक है। आई होप गाइज यू आर गेटिंग, अगर ना भी क्वेश्चन नवेयर भी हो तब भी हम लॉजिकली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट वेंडर, जो हम रोड साइड जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, पाम ऑयल यूज होता है, राइट, होटल्स में पाम ऑयल यूज होता है। सो द थिंग इज, अब यहाँ पे हमें देखना है व्हाट इट एग्जैक्टली अबाउट द पाम ऑयल। The palm oil trees is native to Southeast Asia. Now we have to be sure about whether it is native to Southeast Asia. ठीक है, the palm oil is raw material for some industries producing lipstick and perfume. General statement है, use हो सकता है, yes, and you must be aware about कि होता भी होगा। The palm oil can be used to produce biodiesel, like the moringa seed, like the tamarind. You will find, yes, it could be used for potato, could be used for wheat, could be used for rice, could be used for sugarcane, molasses could be used for, ठीक है। So you will find ये भी correct होगा। So it is native to, अब यहाँ पर अगर लॉजिकली मतलब ना, यहाँ पे आप देखो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं 2 and 3 तो श्योर है, 1, 2 and 3 now we are left with, so now we have to make a call for 1, 2 and 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर now being a fact, ठीक है, देखो यूपीएससी में ये अगर काइंड ऑफ फैक्ट कभी दिया जाता है तो जनरली टेंड टू बी इनकरेक्ट, नॉट ऑलवेज दो, बट यू हैव टू लुक फॉर, ठीक है। तो अगर नहीं पता है यू कैन गो थ्रू 2 and 3, बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका इज व्हाट द नेटिव रीजन फॉर पाम ऑयल, इक्वेटोरियल रीजन में ही ग्रो होगा, डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अभी इंडोनेशिया एंड मलेशिया विल फाइंड दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सो इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस 2 कंट्रीज। विद रेफरेंस टू रिवर्स पे फॉर श्योर यू विल फाइंड रिवर्स एंड वाटर बॉडी, 100% क्वेश्चन आएगा ही, मतलब आएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ऑन इंडस रिवर, ठीक है, करंट अफेयर्स में होती है इंडस रिवर, सो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into which one of the following Indus direct? Among the following, which one is such that river which joins the river Indus direct? ठीक है, so simply question is asking you for which three river first merges into one, and that one river is getting merged directly into Indus, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ट्रिब्यूटरीज पता होते हैं ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, बट ये नहीं पता होता कि ये सारे रिवर्स कहाँ मर्ज हो रहे हैं अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू, उसके लिए हमारे पास मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यू विल फाइंड, देखो ये है इंडस, ठीक है, इंडस इज रादर ड्रेनिंग इन दिस वे, ठीक है, गेटिंग दिस वे, देन यू विल फाइंड, देखो ये है झेलम, सॉरी दिस इज व्हाट द झेलम, मिस्टेक, झेलम, चेनाब, झेलम merges with chenab continues, ravi merges with chenab, it continued journey, and then Bias that merges with the Satluj, and Satluj continue its journey, and Satluj then later to be known as Panjanath river. Panjanath, now the name itself, Panj, it means Panch, ठीक है। So you will find it is rather a Satluj river that drains, carries water from all of the left bank tributary of the Indus and then merges into, Arabian Sea or Indus and then Arabian Sea, right? So इसका आंसर है DC. Now try to understand the depth of the question. रिवर पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज फॉर श्योर। जनरली पहले क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज, विच ऑफ द नॉट, राइट, डैम कंस्ट्रक्टेड। दिस इज व्हाट कंपैरेटिवली इन डेप्थ क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द केस। देन विद रेफरेंस टू इंडिया, सिंपल सा वेल नोन क्वेश्चन है, अवेयर अबाउट और नॉट, राइट, दैट इज व्हाट दिस केस। ये है इंडियन ज्योग्राफी, इट इज अगेन ऑन लेक्स, वाटर बॉडीज, ठीक है। आई टोल्ड यू वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इट इज टू इंडिया, दिद्वाना, कुचामन, सारगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ, these are mostly these are in the राजस्थान। अब राजस्थान में होंगे तो यू कैन कनेक्ट विद फ्रेश वाटर, हो सकता है, नो डाउट, राइट, बट रामसर साइड तो नहीं है, ये तो हमें पता ही है। मैंग्रोव लेक कुड बी, ठीक है, इट कुड बी ग्लेशियर लेक, कुड बी सलाइन लेक, कुड बी, आंसर इज डी, सैलिन लेक्स, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल मान लो या थोड़ा गेस वर्क भी होगा यहाँ पे, अगर एक भी नाम पता है तो यू कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट देम अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ऑन रिवर, आई टोल्ड यू क्वेश्चन ऑन रिवर्स, वाटर बॉडीज, लेक्स तो आएगा ही आएगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव रिवर राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अब देखो रिवर पे पॉसिबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फ्लोस थ्रू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मर्जेस थ्रू डैम्स कंस्ट्रक्टेड, मर्जेस इनटू ईच अदर एंड देन इनटू द इंडस रिवर, राइट। ये पॉसिबिलिटीज है सारी क्वेश्चंस की, यू हैव टू कनेक्ट देम वेल।
Brahmini, now you must be aware about their location. Brahmini, Nagavli, Subarnarekha and Vansadhara. ठीक है, अब देखो यहाँ पर you will find Brahmini that is in the Odisha. ठीक है, Odisha and further north झारखंड वाले पार्ट से ये ओरिजिन हो रहा है. Subarnarekha equally you will find that has छोटा नागपुर प्लेट्यू ओरिजिन. ठीक है, तो ये रिवर वैसे भी कनेक्ट नहीं होगी, ब्राह्मणी भी कनेक्ट नहीं होगी. नागावली इज अ स्मॉल रिवर रादर यू विल फाइंड ओडिशा आंध्र प्रदेश रीजन एंड वंशधारा इज एनीवे वेरी फेमस ईस्टर्न घाट से रिवर. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. देखो यहाँ पे सारी याद रखना इज नॉट पॉसिबल, कुछ लॉजिकली मेजर रिवर्स याद रख लो तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कुड बी अटेम्प्टिंग इजीली अटेम्प्टिंग. ठीक है, देन अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप. इंडियन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर. ठीक है, एनवायरमेंट में डाल सकते हो एग्रीकल्चर एज इन लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप. डू रिमेंबर टू नेम्स, एक होगा राइस, एक होगा शुगर केन. And whenever water scarcity or the issues with the agriculture or kind of question would be asked, try to find this two questions. Sorry, crops, right? दोनों साथ कभी mention नहीं होंगे, one only would be there. And now over in the option, sugarcane is rather the problematic crop. ठीक है, तो answer is A. ठीक है, I'm giving you a hint or the trick कि एग्रीकल्चर में जब भी कभी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जहां पे वाटर इफिशिएंसी, डैमेज, मीथेन प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस, राइट, इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है, यू शैल फाइंड टू नेम्स, शुगर केन या तो राइस. ठीक है, सो दिस वन. एंड देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दिस इज ऑन द क्लाइमेटोलॉजी, ट्रेड विंड्स. ठीक है, या विंड्स एज इन. ठीक है, वहां का क्वेश्चन है. In the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. Yeah, it is simply owing to the influence of trade wind. Now you have to connect over on the globe जो map है जहाँ पे trade winds flow कर रहे हैं like in this way. तो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शन कैसे कनेक्ट हो गए, यू हैव टू थिंक फॉर थोड़ा लॉजिकली. आई एम नॉट बिकॉज अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल बी टेकिंग टाइम, बट या टू रिमेंबर वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन. ठीक है, दिस इज व्हाट ओशन. तो वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर जनरली वार्मर क्योंकि व्हाट इज द थिंग दैट you will find trade winds are carrying kind of heat accumulated from tropical region to the western part of the ocean, and that is the reason you will find first statement correct. Then in the temperate zone, westerlies make the eastern sections of the ocean rather warm. ठीक है, अब वेस्टर्लीज क्या होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ वेस्टर्लीज इस वे से मूव करेगी. ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में साउथ वेस्टर्ली, एंड यू विल फाइंड बोथ दे आर carrying water from western section of the ocean or tropical region to the eastern section. Ultimately the water over in the eastern section क्या होगा, warmer होता जाएगा. क्यों? क्योंकि tropical region से water आ रहा है ना, तो obvious case you will find it would get warmer. ठीक है, तो answer to this question is C. ठीक है, logically है, you have to connect. Then the last question over in the 21, and that is again I like vegetation या climatology. मैं तो इसको climatology से भी connect करता हूँ. सी अब इतने बड़े क्वेश्चंस में ना, ये जब क्वेश्चन जब पेपर में होगा तो इट मस्ट बी हाफ फुल लेंथ पेपर. ठीक है, क्वेश्चन इट मस्ट बी. इतने लंबे क्वेश्चन में कभी भी याद रखना, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. टू रिमेंबर व्हाट यू हैव टू फाइंड, दिस क्वेश्चंस आर रादर फ्लडेड विद क्लूज है ना, यू हैव टू फाइंड द क्लूज एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर. देखिए राइट नाउ, लीफ लिटर डिकम्पोजेस faster than in any other biome. Okay, now you have to. अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, पहले ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, राइट, एंड देन आई कैन कनेक्ट वेल विद दी क्लूज. देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, तो अब चार नाम्स मेरे सामने हैं. नाउ आई हैव टू फाइंड दी क्लूज और कनेक्ट. Leaf litter, that the leaves, those are getting what after maturity or during the season they get fall down, that is litter, decomposes faster than any other biome. Obviously decomposition कब होगा, when temperature is higher. ठीक है, अब temperature higher कब होगा, जब वहां पे वो hot temperature tropical region में होगा. तो tropical region में होगा, see यहीं से coniferous forest is anyway not that option, and you will find mangrove forest just could be one of them. Then the soil surface is often almost bare. ठीक है, bare कब हो सकता है, it may be excessive prone to erosion or maybe it could be having excessive rainfall. तो यहाँ पे दो possibility हो सकती है. desert type तो है नहीं, tropical rainforest could be possibility. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plants from that reach up to the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes. ठीक है, see epiphytes I believe rather is the most important clue, right? Epiphytes ये ना बहुत important clue है generally whenever equatorial type of forest or tropical rain forest could be
there, right? So generally see this kind of question you have to find the clues. Okay, तो ये clues मुझे यहाँ पे एपिफाइट दिख गया, decomposition faster भी है, and bare surface rooted on the upper branches of the tree. This is most likely description of answer is tropical rainforest. Okay, so I hope you guys are getting this thing right के कैसे clues या identify करने हैं, and accordingly we have to attempt. So this is what all about this 2021 paper. Hope guys you liked it. If you liked it, so share it with the near and dear one. Thank you for watching.